Hello everyone. So after completing part 1 of chapter 2, now we will start our second part of that chapter from grade 7 science. So what we have to learn in this part 2 video. So in this video we have to learn nutrition in ruminants. Already we learned nutrition in animals, or else you can say nutrition in human beings in our part 1 video. So here we talk about nutrition in ruminants. So first of all, you may have a question that what is ruminant? What are they? So they are nothing else but a type of animal which eating grass. That means the grass eating animals is known as ruminant. कि भाई जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स है कि जो ग्रास खाते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दे आर ruminants. Cow, goat, these all are horse, these all are ruminants. Done. So we are starting with the first term, and that is ruminant. So the animals that digest the food by the process of rumination, they are called ruminants. Then ruminants have two definitions. First one is the grass eating animal is known as ruminants, and the second one is a type of animal that have rumination as a digestive process. That means a type of animal that have digested food by the help of rumination. कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस रुमिनेशन के थ्रू होती है, दे आर ruminants. The here examples are cow and goat that I show you in this picture. The first one is cow and the second one is goat. Now, so how this system are, how it looks like, what are the difference in between normal animal digestive system and in ruminant system? So here you can see the four chambers are there. Just see in a right corner, I mentioned that the four chambered stomach parts are rumen, reticulum, omasum and abomasum. This four part is included in a ruminant digestive system. As compared to digestive system of human, this system is different. In human digestive system, we have 5 different process and different organs included in them, and that 5 steps are ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestions are there. But if we are talking about ruminants, so they have different system, and that system is shown in this picture. So their stomach have 4 different part. That means their stomach divide in a 4 different part for the digestion. First part is rumen, then second one is reticulum. Already I mentioned everything with different color. The first one is rumen, which is shown in yellow in color, and already labels are there, arrows are there and numbering also are there. Then the second one, that is lightish orange color, that one is reticulum. Then in pink color, omasum is there, and the white duct like portion, that one is abomasum. So these are a 4 part which is in a ruminant digestive system. Now how it works, कि यहाँ पे फूड पहुँचेगा कैसे, किस तरीके से प्रोसेस करेगा. So they are the same process with the help of esophagus. As like human eat anything, it will go from mouth to stomach with the help of esophagus, or else you can say food pipe. So at the same way it works in ruminants. Ruminants have esophagus also. So after getting food from mouth, it will reach in stomach with the help of esophagus, and then small intestine, large intestines are there. The excretion system are there. Done. So now we will learn the theory portion. So what is the theory portion? So the ruminant have an outstanding feature as a part of the digestive process. So that means if we are talking about ruminants, so they have a outstanding features in a digestive process. कि भी उनकी digestive process के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें हैं, that one is a unique things. So what are they and what are their key feature? So the first one is they don't have to digest everything that they eat immediately. Like human beings, हमसे कंपेयर करो तो हमें क्या होता है, हम जो भी फूड खाते हैं we immediately chew it in our mouth, and after
हम सारा फूड क्या कर लेते हैं, चू कर लेते हैं माउथ में, एंड देन that food will go in a stomach and the further digestion will complete in stomach. But ruminants have different system that don't have to digest everything that they eat immediately. कि उनका क्या होता है, हमारा जैसा नहीं है कि जो भी खाया है वो तुरंत के तुरंत डाइजेस्ट करना है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. अब तो क्या होगा, दे डोंट ईट द फूड इमीडिएटली, दे swallow it and store it in a rumen. कि अब रूमिनेंट्स में होगा क्या, तो क्या करेंगे, उनको जब भी फूड मिलेगा, वो ह्यूमन बींग्स तो है नहीं कि उनको 3 टाइम पे रोज टाइम टू टाइम खाना मिल जाएगा. दे आर एनिमल्स, शहरी में गली में कहीं पे घूमते रहते, तो उनको कब फूड मिलेगा कब नहीं मिलेगा, दैट डोंट हैव एनी प्रॉपर टाइमिंग. सो ये लोग क्या करते हैं, उनको जब भी फूड मिलता है जहाँ से भी, दे स्वैलो इट, कि वो क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं सारे फूड को. सो दे डोंट ईट द फूड इमीडिएटली, दे swallow it and stored it in rumen. कि वो क्या करेंगे, फूड को swallow कर लेंगे और rumen के अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे. वो जो येलो कलर का पोर्शन देखा था ना, वापस से एक बार दिखा देती हूँ. ये जो येलो वाला पोर्शन है, वहाँ पे वो लोग क्या कर लेंगे, फूड को स्टोर कर लेंगे. कि भाई माउथ में swallow किया और एसोफेगस से सारी चीज़ें आके रूमेन में क्या हो गई, स्टोर हो गई. अब क्या होगा, सो इन द रूमन द फूड बिकम्स कर्ड. अब क्या होगा कि वो जो येलो कलर का आपने रूमन देखा ना, उस रूमन के अंदर क्या हो जाएगा, फूड स्वैलो हो जाएगा. जो स्वैलो हुआ हुआ फूड आया था वो क्या हो जाएगा, कर्ड बन जाएगा. सो नाउ व्हाट इज कर्ड, कर्ड इज अ स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड, इज नोन एज कर्ड. मतलब जब उसने माउथ में लिया होगा तब उसने थोड़ा सा उसको क्या किया होगा, च्यू किया होगा, और वो थोड़ा सा फूड क्या हो गया होगा, सॉफ्ट हो गया सलाइवा की वजह से. तो ये जो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ फूड है जो उनके रूमन में स्टोर्ड हुआ है, उस फूड को क्या बोला जाता है, कर्ड बोला जाता है. लेटर व्हेन द रूमिनेंट इज इडल, द कर्ड इज ब्रॉट टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. अब क्या होगा कि उनको जब खाना मिला था तब उसने क्या किया, सारी कुछ चीज़ें स्वेलो कर ली और रूमेन के अंदर क्या कर ली, स्टोर करके रख दी. अब क्या होगा कि जितनी नीड थी उतना खा लिया, बट अब जब उनको खाना नहीं मिला होगा तब क्या होगा कि जब भी वो फ्री बैठे होंगे तो वो जो रूमन में स्टोर किया हुआ फूड है वो रूमन में से वापस क्या आएगा, माउथ के अंदर आएगा, और वहाँ से क्या होगा, फिर वो सारी चीज़ें वापस से च्यू होगी. इसीलिए आप बहुत सारे एनिमल्स को, जस्ट काऊ का ही एग्जाम्पल ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल है. अब जब काऊ को रोटी दोगे ना, वो पूरी रोटी ऐसे ही मुंह में निगल लेगी और फिर चली भी जाएगी, और फिर कहीं पे बैठी होगी ना तो ऐसे बैठे बैठे अपना मुंह हिला रही होगी, बैठे बैठे च्यू कर रही होगी. तब उसको कोई फूड देने नहीं आया था, बट आपने पहले जो उसको फूड दिया था वो सारा फूड उसने क्या किया होगा, अपने रूमन के अंदर स्टोर करके रखा है. और फिर जब वो फ्री होगी तब वापस से वो फूड क्या होगा, रूमन से वापस आएगा माउथ में. अब वो कर्ड के फॉर्म में होगा. अब वो कर्ड के फॉर्म में जो फूड है वो सारा माउथ में वापस आएगा और वापस से वो क्या होगा, रीच्यू होगा. सो when the ruminant is idle, the food is brought to the mouth in small lumps and the animals chews it. ऑलरेडी मैंने आपको समझाया कि वो फूड वापस आएगा और एनिमल क्या करेगा, उसको च्यू करेगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination, and this process the food is coming back in mouth and redigested and rechew. This process is nothing else but rumination. Now you understand why these animals are referred as ruminant. तो अब आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि why they are known as ruminants, because they have rumination digestive system in them. Done? समझ में आया? Again I'll show you one diagram of cow's digestion system with the labeling arrows so you can get idea. Then, but after moving the cow's diagram, you have to learn some things that how the structure of digestive system of ruminant, कि उनका structure क्या होगा. So, grass is rich in cellulose which can't be digested by which can't be digested by many organisms including animals. कि generally ये जो grass eating animals है, already we told that ruminants are grass eating animals. That means वो grass के अलावा
कुछ और कम खाते हैं, या तो फिर वेजिटेबल सारी चीज़ें, सारी जो वेजिटेरियंस लोग खाते हैं, रोटी वगैरह ये सारी चीज़ें। बट मोस्टली उनका फूड प्रिकॉशंस क्या, फूड मेन क्या होता है, दैट इज ग्रास। सो ये ग्रास का डाइजेशन किस तरीके से होता है, तो ये जो ग्रास है दे हैव सेल्यूलोज इन दैम, कि ग्रास के अंदर सेल्यूलोज बहुत ही ज़्यादा होता है। बिकॉज ग्रास इज नथिंग एल्स बट अ प्लांट ओनली, चाहे वो छोटा है बट वो प्लांट है एक टाइप का, तो प्लांट के अंदर सेल्यूलोज होता ही है, सेम एज कि ये ग्रास के अंदर भी सेल्यूलोज होगा। सो विच कांट बी डाइजेस्ट बाय एनिमल्स, और ये जो सेल्यूलोज है वो सेल्यूलोज ह्यूमंस के अंदर और एनिमल्स के अंदर डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती, मतलब कि हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या तो फिर कोई भी नॉर्मल एनिमल नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? इसीलिए रूमिनेंट्स की डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बाकी अगर वो डाइजेस्ट कर पाते तो हमारे सिस्टम और उनके सिस्टम में कुछ फर्क ही नहीं होता। सो ये फर्क क्या है? द सेल्यूलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड इन द केकम विच लाइज बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अ लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम तो सीधा प्लांट को खाते नहीं है, घास वगैरह खाते नहीं है, पर ये एनिमल्स खाते हैं। तो व्हाट आर द यूनिक थिंग इन दिस एनिमल्स बॉडी दैट दे कैन डाइजेस्ट दिस सेल्यूलोज एंड वी कैन नॉट, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनकी बॉडी में है और हमारी बॉडी में नहीं है, कि वो लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। सो दैट मेन डिफरेंस इज नथिंग एल्स बट अ कैकम। ये जो कैकम है वो एनिमल्स की बॉडी के अंदर होता है एंड दैट इज प्लेस्ड इन बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, की स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक गेप होता है, मतलब एक जगह होती है, वहां पे केकम प्रेजेंट होता है एंड दिस केकम हैव कैपेसिटी टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। देन कि ये केकम की हेल्प से सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है, दैट्स व्हाई दिस एनिमल्स कैन ईट ग्रास इजीली एंड कैन डाइजेस्ट ग्रास easily, that's why they are known as ruminants. Now as I told you that I will show a diagram of cow's digestive system. So here it is, here you can see I label the things with 1 2 3 4 marks. So how it works, अब मैं आपको समझाती हूँ। Done. First of all, what is the process? Here is a cow which is eating grass. So as and when cow eats grass which is green in color, it will go inside the oesophagus. After mouth, it will go inside the oesophagus. Then just see the green arrow which I labeled for the direction purpose. So from this oesophagus, the food is go in a cecum, which I mentioned with in rumen, which I mentioned with number 1. अब रूमन में आके ये फूड स्टोर्ड, देन आफ्टर कमिंग इन रूमन द फूड गेट स्टोर्ड इनसाइड इट। अब क्या होगा, यहाँ से फूड आ गया, अब जब भी काउ फ्री थी इट विल गो फॉर अ रीच्यूइंग। अब क्या होगा, वो रीच्यू होगा, वापस रीच्यू होने के लिए इट विल गो फ्रॉम रूमन टू रेटिक्यूलम। जस्ट चेक दैट ग्रीन एरो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस. So from mouth to oesophagus, then from rumen, and after rumen it will go in a reticulum. Then so after reticulum it will move back in a mouth for the original digestion process or else original chewing. Then so which is I show in a red in color, that means the red arrows come back in mouth and rechew. Then अब ये food rechew हो गया, सो रीच्यू होने के बाद वो क्या हो जाएगा, वापस एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा. सो विच आई मार्क्ड विथ ब्लू एरो. देन सो दैट ब्लू एरो शोज दैट फूड इज गोइंग बैक फ्रॉम माउथ टू omasum, then which is I mentioned with blue in color. So the food will reach at omasum. Here the further digestion process, absorption of material can be done, and from that omasum it will go in abomasum, which I denoted with black color arrow, and number 4 is for omasum. Then so at omasum the further process is done, and from omasum it will go in small intestine. Then
Now from small intestine it will move in large intestine, but in between them cecum is there, and the cellulose portion which is in a food part is digested at cecum, and after cecum it will go in large intestine, and from large intestine water, minerals, and the last things, everything which is digested, and the waste product will be ejected out from the body. Done? समझ में आ गया how it works? So at that ruminant system is completed with the cow diagram. Now we will talk about न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. मतलब अगर आप सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की बात कर लो तो उनके अंदर न्यूट्रिशन के प्रोसेस किस तरीके से होगी. सो इन माइक्रोस्कोपिक सिंगल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोइबा हैव सेल मेम्ब्रेन, round dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba change its shape by locomotion, catching prey, etc. by using pseudopods. अब ये सारी चीज़ें समझने से पहले you have to know what is single celled organisms. Then, because before learning what is single cell organism, you can't learn anything. So we are starting with the single cell organism. So single cell organisms are a type of organism which have only one cell in the body. समझ में आया कि ऐसे organism जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगा, that organisms are known as single cell organisms. अब कौन से ऐसे organisms है? They are single cell organisms. So the example is amoeba. Done. Now how it works and how they can get food that we have to learn. So अमोइबा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हमें पहले जाननी है, तभी हम समझ पाएंगे कि उनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होगा. सो हियर आई मेंशन इमेज ऑफ अमोइबा. सो ये जितनी भी आपको एंडिंग्स दिख रही है दैट आर द सेल मेम्ब्रेन, मतलब बॉडी की जितनी भी आउटर कवरिंग है, बाहर की सरफेस. जैसे हमारा घर है तो घर की जो वॉल है दैट वॉल इज अ सेल मेम्ब्रेन. तो एट अ सेम वे इनकी जो बॉडी की जो आउटर लाइनिंग है दैट वन इज अ सेल मेम्ब्रेन. दे हैव राउंड डेंस न्यूक्लियस, कि उनके अंदर राउंड शेप में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. सो नाउ व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज लाइक ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि यहाँ से सारी हैंडलिंग होती है, डीएनए वगैरह, प्रोटीन वगैरह, दैट विल synthesize in nucleus. That means command is given by nucleus. And many small like bubbles known as vacuoles. You can easily show that so many bubbles are present in them. So they are vacuoles. And all the things which is in star-like form that you can see in between the material that is cytoplasm. कि जितना भी आपको jelly-like material दिख रहा है, that jelly-like material is cytoplasm. Done. So this one is the features of amoeba, that how amoeba are, that have cell membrane, they have round nucleus, they have vacuoles in them, and the jelly like material in them which is cytoplasm. जितना भी fluid है ये बीच में आपको दिख रहा है, that is cytoplasm. Now we shift how it will get food. Then कि अब वो food किस तरीके से लेगा उसके ऊपर जाते हैं. So अमोइबा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक साइज एंड शेप. अगर आपको कोई अमोइबा ड्रॉ करने को बोले तो उनका कोई फिक्स साइज एंड शेप नहीं होता. जैसे भी मज़ा आए वैसे पेंसिल घुमा दो, इट विल अ स्ट्रक्चर ऑफ अमोइबा. देन जैसे इसका भी कोई साइज शेप नहीं है तो वैसे आपको मज़ा आएगा वैसे आप ड्रॉ कर लो, इट विल बी अमाइबा. सेंटर में सिर्फ एक गोल राउंड कर देना, वो न्यूक्लियस हो गया. तो इनका कोई शेप नहीं होता, इसीलिए इनकी मूवमेंट कैसे होती है? लोकोमोशन मूवमेंट होती है. दैट मीन्स कि वो इजीली कोई डायरेक्शन में जब भी मज़ा आए वैसे घूम सकते. एक साइड का हाथ कभी इस साइड लंबा होगा, कभी उस साइड लंबा हो जाएगा. दैट विल लोकोमोशन, कि इनके अंदर शेप फिक्स नहीं होता. अब ये अपना फूड किस तरीके से लेंगे? सो दे विल कैच प्रे. वो लोग क्या करते हैं? अपने फूड को पकड़ लेते हैं, एंगल्फ करते हैं विद द हेल्प ऑफ pseudopodia. सो नाउ व्हाट इज pseudopodia? Pseudopodia that means false feet of amoeba, कि भाई अमोइबा के पास पाँव नहीं होते जैसे हमारे पास है चलने फिरने के लिए. So amoeba have a false feet and that false feet is known as pseudopodia. So
just look at the image of amoeba and just think that what are false feet and where they are, कि ये कहाँ पे है. डन. तो आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे, मैं आपको समझाती हूँ होते क्या है. फॉल्स फीट मीन्स कि ये जो अमोइबा है उसके बाजू में कहीं पे फूड पड़ा है. जैसे अपर राइट कॉर्नर में देखो कि जैसे आपको कुछ ऐसे दिख रहा है कि भाई फूड का मॉलिक्यूल पड़ा है. एंड एट द सेम वे लेफ्ट साइड में भी उनके सेंटर पोर्शन में, लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट साइड पोर्शन है एंड पे, वहाँ पे भी आपको एक ब्लैक कलर का मार्क दिख रहा है. सो दैट आर द फूड्स. सो नाउ अमोइबा वांट्स टू ईट दैट फूड. सो व्हाट इट विल डू. तो अब ये क्या करेंगे कि उनकी बॉडी का कुछ शेप तो है नहीं, वो जैसे मज़ा है वैसे अपना शेप चेंज कर सकते हैं. तो वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी से ऐसे हैंड्स निकालेंगे, फॉल्स फिट निकालेंगे कि अपनी बॉडी में से ऐसे करके फिर क्या करेंगे, हाथ निकाल के उस चीज़ को एंगल्फ कर लेंगे, पैक कर लेंगे और फूड को क्या कर लेंगे, अपनी अंदर ले लेंगे, एंगल्फ कर लेंगे. डन. सो दिस वन इज अ फॉल्स फीट. कि ये जो जनरेट हुए थे ना फॉल्स फीट, ऐसे लंबे हुए और अपने फूड को उन्होंने अंदर ले लिया. तो ये जो हाथ जनरेट हुआ था दैट वन इज अ फॉल्स फीट, कि जिसके थ्रू उन्होंने फूड लिया. एंड दैट फॉल्स फीट इज नोन एज शुडोपोडिया इन साइंस लैंग्वेज. डन. और फिर उस फूड को खा के उनको न्यूट्रिएंट मिल जाएगा. नाउ amoeba feed on some microscopic organism. When it sends food, it pushes out its pseudopods around the food particles. It forms a vacuole where digestive juice are secreted to absorb all nutrient from the food. Then it's move ahead. Then again एक अमोइबा का एग्जाम्पल डायग्राम के साथ है. यहाँ पे आपको pseudopods प्योर मैंने ड्रॉ करके बताया कि क्या होगा. इमेज की राइट साइड देखो, सेंटर पोर्शन में राइट साइड के एंड पे सेंटर पे वहाँ पे शुडोपोडिया करके चीज़ें लेबल्ड है. अब क्या हुआ होगा, ये जो लिखा है ना फूड बीइंग एंगल्फ्ड बाय शुडोपोड्स, ये फूड था जो बाहर की साइड था. अमोइबा ने क्या किया, ये जो आपको 2 फीट दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे हाथ जैसा बनाया, यू शेप स्ट्रक्चर बनाया और यू शेप स्ट्रक्चर बना के क्या किया, फूड को अंदर ले लिया. और अभी जो ऊपर की ये जो 2 यू के एंड है ना, वो एंड्स क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे. तो फूड क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा. अंदर जैसे आपको बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं ना, कि जिन बबल्स के अंदर और भी कुछ ब्लैक कलर का छोटा छोटा है, वो सारे फूड पार्टिकल्स है जो अमोइबा ने क्या किया था, ऐसे फॉल्स फीट और शुडोपोड्स जनरेट करके अंदर लिए थे. तो इसी तरीके से अमोइबा क्या करेगा, उसको अंदर लेके उसको एंगल्फ कर लेगा. अब एंगल्फ हो जाने के बाद वो अंदर जितनी भी वैक्यूल्स है ना, जो ब्लैंक आपको राउंड राउंड दिख रही है, वो वैक्यूल्स हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे. वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये फूड के ऊपर स्प्रे होंगे और उस फूड का क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा. और फिर डाइजेशन हो जाने के बाद एक्स्ट्रा चीज़ें जो दूसरी साइड पे शुडोपोड्स है ना, वहाँ से चीज़ें बाहर निकल जाएगी, वो बॉडी में से बाहर निकाल देंगे. देन गाइस, सो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस एंड इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. Here your chapter 2 is completed. Thank you everyone. Have a good day.